So bipartite graph, bipartite, bi means what? Two, and partite means partition. So whatever the vertex set of graph G is given. Now see, what is the definition? Definition is already written here. The vertex set of graph G, मतलब graph G का जो भी vertex set है, so can be split into two disjoint sets. Disjoint set, disjoint मतलब no common vertex should be in these two sets. Okay, okay. मतलब उसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए दोनों सेट में. मतलब V1 एंड V2 ऐसे दो डिस्टेंट सेट्स हमने कंसीडर किए. सो V1 एंड V2 शुड बी अ डिस्टेंट सेट. मतलब V1 का कोई भी वर्टेक्स V2 में नहीं होना चाहिए, V2 का V1 में नहीं होना चाहिए. इन अ सच वे, कैसे डिस्टेंट करना है? इन अ सच वे दैट each edge in a graph joins a vertex in V1. मतलब उसकी एक एज vertex V1 में होनी चाहिए. One end point of that vertex should be in V1, and the another end vertex or end point of the vertex should be in set V2. मतलब उस vertex set का एक end point, सॉरी एज का एक end point vertex set V1 में होना चाहिए, और दूसरा end point क्या कहाँ पे होना चाहिए? vertex set V2 में होना चाहिए. Okay, so then we can say that the graph is a bipartite graph. उस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम? बायपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं. I'll explain it by taking one example, then you understood it betterly. I'll say the name to this vertex A, B, C, and D, and I'll give the name to the edges, that is E1, E2, E3, E4. So like that we have the graph of this. Okay, now in this graph, how many number of vertices? Now this is a graph GV. ये क्या हुआ? ग्राफ GV हो गया. तो उसका वर्टेक्स सेट क्या हो गया? V हो गया. So how many vertices are there? A, B, C, and D. 4 vertices are there in this graph G. And edges. So edge set is denoted by E. So E1, E2, E3, and E4. 4 edges है, मतलब 4 vertices और 4 edges. Now it is not necessary that the number of edges and number of vertices should, are equal. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. So there may be a different number of edges and different number of vertices also. Okay, तो ये जो vertex set है, so that vertex set we are going to split it in the two vertex set. Okay, दो vertex set में split करना है vertex set को. Okay, तो इस तरीके से split करना है कि जो भी एज है उसका एक एंड पॉइंट वर्टेक्स सेट V1 में आना चाहिए और दूसरा एंड पॉइंट वर्टेक्स सेट V2 में आना चाहिए. सपोज इफ आई टेक हियर द A एंड C लिया मैंने, द वर्टेक्स सेट A एंड C लिया, और यहाँ पे V2 में B एंड D लिया है. सपोज B एंड D लिया, राइट? सो द सेट वर्टेक्स सेट V1 इज इक्वल टू AC and vertex set V2 is BD. So like that we divide the vertex set V in two disjoint sets. Disjoint मतलब अभी देखो V1 और V2 में कोई कॉमन वर्टेक्स है क्या? कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है. मतलब V1 एंड V2 डिस्जॉइंट सेट्स हो गए, एंड दोनों को आना चाहिए वर्टेक्स सेट V आना चाहिए. ओके, मतलब वर्टेक्स सेट V का एक तो वो V1 में होना चाहिए या फिर V2 में होना चाहिए. ओके, नाउ if you draw the edge, if you draw the edges, now edges E1 is where in this graph? E1 कहाँ पे है? It is between A and B. तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं A and B के बीच में. Okay, so this is the vertex A and B, and there is a edge E1 between A to B. E2 कहाँ पे है? E2 is between B and C. So we'll draw the edge E2 between B and C. B and C के बीच में E2 ड्रॉ करते हैं. E3 कहाँ पे है? Between C and D. So I'll draw the edge E3 between C and D. And where is E4? E4 is between A and D.
So this is E4. So if you observe the graph, every edge whose one endpoint is in the vertex set V1 and the another endpoint is in vertex E2, V2. So that's why this graph is called as a bipartite graph. इसको क्या बोलते हैं हम? Bipartite graph बोलते हैं. Okay, the graph is a bipartite graph. Is that clear? अगर ये इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं वर्टेक्स सेट को दो वर्टेक्स सेट में, कि हर एक एज का एक एंड पॉइंट वर्टेक्स सेट V1 में आना चाहिए, दूसरा एंड पॉइंट वर्टेक्स सेट V2 में आना चाहिए. So then we can say that the graph is a bipartite graph. Okay, is that clear? What is meant by the bipartite graph? सेट जो भी आता है ग्राफ G का, उसको स्प्लिट करना हमें दो सेट में, दो डिस्टेंट सेट में स्प्लिट करना है. तो वो स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको. सी, अगर यहाँ पे मैं और एक एज ड्रॉ करूंगा ए एंड सी के बीच में इन दिस ग्राफ, सपोज इफ आई ड्रॉ द एज E5 बिटवीन ए एंड सी. ओके, और वही हमने वर्टेक्स सेट को V को स्प्लिट किया V1 एंड V2 में. सो V1 कंटेन्स द वर्टेक्स A एंड C, V2 कंटेन्स द वर्टेक्स B एंड D. तो हमने सारे एजेस ड्रॉ किए. अभी E5 को भी ड्रॉ करते हैं. सो वेयर इज E5? E5 इज बिटवीन A एंड C. तो A एंड C के बीच में अगर हम एज ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया? E5 के दोनों एंड पॉइंट्स V1 में भी V1 में ही आ गए ना, वर्टेक्स सेट V1 में ही आ गए, राइट? बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द एज E5 आर इन सेट V1 ओनली. ओके, ए भी V1 का वर्टेक्स है, सी भी V1 का वर्टेक्स है, तो दोनों एंड पॉइंट एक ही सेट में आ गए ना. सो देन वी कैन से दिस इज नॉट ए बायपार्टाइट ग्राफ. ये बायपार्टाइट ग्राफ नहीं है. अगर ऐसा कोई भी आता है ग्राफ कि जिसके एज के दोनों एंड पॉइंट्स एक ही सेट में आते हैं, सो देन इट इज नॉट अ बायपार्टाइट ग्राफ. सो बायपार्टाइट के लिए क्या होना चाहिए? एक एंड पॉइंट एक सेट में आना चाहिए, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे सेट में आना चाहिए हर एक एज का. So then only we can say it is a bipartite graph. Okay. एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आपको. I'll just remove this one. I'll take another example for a bipartite graph. See, example. I'll take this one, pentagon. ओके, शेना आता लेक्चर चालू आहे का? U1, काय U2, U3, U4 एंड U5. ओके, ये एक हमने ग्राफ कंसिडर किया. दिस इज आवर ग्राफ, ग्राफ GVE. तो इसका वर्टेक्स सेट क्या हुआ? वर्टेक्स सेट हुआ A, B, C, D. Sorry, not A, B, C, D. U1, U2, U3, U4 and U5. So U1, U2, U3, U4, U5. Okay, and age set. Age set क्या है इसका? Suppose if I'll give the names to these edges 1, 2, 3, 4 and 5. And suppose I'll draw one more edge 6. और यहाँ पे भी ड्रॉ किया हमने एज 7. सो ये एज 6 हो गई और ये एक एज 7 हो गया. ऐसे हमने ड्रॉ किया. ठीक है. सो व्हाट इज द एज सेट? एज सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 number of edges are there in this graph and 5 vertices are there. Okay. तो इस वर्टेक्स सेट को हमें स्प्लिट करना है. ओके, तो स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करेंगे देखो. अभी I'll take a one vertex set V1. ठीक है, और दूसरा वर्टेक्स सेट लेते हैं हम V2. ठीक है, तो V1 में अगर हमने सपोज
U2 कंसिडर किया, सॉरी U1 कंसिडर किया. U1 इज द वर्टेक्स ऑफ द सेट V1. किसी भी वर्टेक्स सेट में ले सकते हो, नॉट नेसेसरी इन V1 ओनली. सो U1 को हमने लिया V1 में. सो U1 को एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से है? Which are the adjacent vertices to U1? U2, U5. U2 and U5, right? So I'll write this U2 and U5 in opposite set, that means in V2. So U2 and U5. Okay. Okay, what I'll do here, I'll remove these two edges because it is not possible to this two one. Okay. ये दोनों एजेस हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है. अभी U2 एंड U5 हो गया. तो U2 को एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से है? देखो U2 को U3, वो अपोजिट सेट में आएंगे. U1 एंड U3 तो वो अपोजिट सेट में आएंगे. सो U2 इज इन सेट V2. सो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस जो है तो वो V1 में आएंगे. सो U1 इज ऑलरेडी देयर एंड U3 इज देयर. ठीक है. U5 के एडजेसेंट वर्टिसेस U4, U3 U1, U4. U1 U5 के U1 एंड U4 करेक्ट. तो वो अपोजिट सेट में आएंगे. तो U5 इज इन V2 तो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस V1 में आएंगे. सो U1 तो ऑलरेडी V1 में है. सो जस्ट I'll write it U4. हो गए सारे सर वर्टिसेस? U3 का एडजेसेंट U4 है ना? कहाँ पे? बॉटम में U3 एडजेसेंट U4. हाँ ना, वही हम चेक करते हैं, देखते हैं ना. सो कैन वी ड्रॉ द बाइपार्टाइट ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ? जस्ट दैट वी आर चेकिंग. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ. मैंने ये नहीं बोला अब तक कि ये बाइपार्टाइट ग्राफ है. हम चेक कर रहे हैं बाइपार्टाइट है कि नहीं. ठीक है. सो लाइकवाइज वी स्प्लिट द सेट V इन टू सेट्स. सो ये डिस्टेंट सेट हो गया V1 एंड V2. सो लेट्स चेक नाउ. एक सेट हम क्या करते हैं, हम V1 का एक सेट बनाते हैं. ठीक है. दिस इज द सेट V1 एंड दिस इज द सेट V2. तो V1 में कौन कौन से वर्टिसेस लिए हमने? दैट सेट वर्टेक्स U1, देन U3 एंड देन U4. ठीक है. एंड U2 में हमने लिए थे, V2 में हमने लिए थे U2 एंड U5. ओके. सो 3 वर्टिसेस आर इन द सेट V1 एंड 2 वर्टिसेस आर इन सेट V2. तो ऐसे हमने स्प्लिट कर दिया वर्टेक्स सेट को. बट कैन द एवरी एज whose one end point in the set V1 and the another end point in the set V2? Let's check. Now we'll draw the edges one by one. Edge 1. So 1 is between which two vertices? U1 and U2. U1 and U2 के बीच में है ना. So just draw the edge 1 in between U1 and U2. ठीक है. This is the edge 1. Then 2. 2 is between U2 and U3. So U2 and U3 के बीच में हमने एक एज ड्रॉ कर दी. So that is the edge 2. 3 is between U3 and U4. Okay. So see there, U3 and U4. तो एज 3 क्या होगी? दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे आ गए? एक ही सेट में आ गए. मतलब V1 के दो वर्टिसेस को इंसिडेंट हो गए. एज 3, U3 and U4. ओके. सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ, क्योंकि हर एक एज का एक एंड पॉइंट सेट V1 के वर्टेक्स को कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा एंड पॉइंट सेट V2 के वर्टेक्स को कनेक्ट होना चाहिए. ओके. अगर U4 लेंगे हम, सॉरी 4 वर्टेक्स लेंगे, सो 4 इज बिटवीन U4 एंड U5. दैट विल बी ओके. 4 एंड 5 को लिया तो U1 एंड U5 के बीच में आएगा. सो दैट इज ऑल्सो ओके. 5. But this edge 3, whose both endpoints are contains in the same vertex set. So therefore that given graph is not a bipartite graph. ये bipartite graph नहीं है. Okay. This is not a bipartite graph. V1 and V2 given होते हैं क्या? V1 आणि नाही, हे आपण डिफाइन केलं ना. We define this V1 and V2. So it may be possible you can take U4 in this set. Yes. आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो ये V1 V2.
You can try it yourself for a different V1 and V2. Only the condition is that, सिर्फ condition ये होनी चाहिए कि कोई भी vertex दोनों सेट में नहीं होना चाहिए. जो V1 में वो V2 में नहीं होना चाहिए, या फिर V2 में वो V1 में नहीं होना चाहिए. That is the condition. Okay. So ऐसे आप अलग अलग चेक करके दे सकते हो. And then if you draw the graph, yes, Can't we take U1, U2, and U3 in one vertex, and U4 and U5 in the another one? what repeat once again. Can't we take U1, U2, and U3 in one vertex, and then U4 and U5 in another one? Yeah, you can take, but then the second condition should be satisfied. See, in a bipartite graph, there are the two conditions. दो conditions है for a bipartite graph. Okay, दो conditions है. पहली condition कौन सी है? That V1 and V2 should be disjoint. ये disjoint है, ठीक है. And दूसरी condition क्या है? Every edge, whose one end in V1 and another end in V2. ठीक है, ये दो कंडीशन है. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, then only we can say it is a bipartite graph. If these two conditions are satisfied, then only. अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते, then we cannot say it is a bipartite graph. It is not a bipartite graph. मतलब V1 V2 तो डिस्जॉइंट होना ही चाहिए. तो आप कैसे भी ले लो V1 V2 के वर्टाइसेस कोई भी ले लो, दैट डजंट मैटर. बट उसके साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. मतलब हर एक एज का एक एंड पॉइंट वर्टेक्स सेट V1 के वर्टेक्स को कनेक्ट होना चाहिए, और दूसरा एंड पॉइंट वर्टेक्स सेट V2 के वर्टेक्स को कनेक्ट होना चाहिए. ओके, तो ही वो बाइपार्टाइट होगा. Any vertexes in V1 and V2. या एनी वर्टेक्स टू V1 एंड V2, किसी भी वर्टेक्स को होना चाहिए, डजंट मैटर. It should not be repeated. It should be disjoint. एनी मतलब अभी यहाँ पे ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ में वर्टेक्स एज 1 कहाँ पे है? बिटवीन U1 एंड U2. तो यहाँ पे भी वन वर्टेक्स एज नंबर 1 U1 एंड U2 के बीच में ही होनी चाहिए. वी कैनॉट चेंज द एडजेसेंसी ऑफ दैट एज. मतलब वो एज के हम इंसिडेंस हम चेंज नहीं कर सकते. अगर 1 U1 एंड U2 के बीच में है, तो इसमें भी 1 U1 एंड U2 के बीच में ही होनी चाहिए. ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू डिवाइड द वर्टेक्स सेट. तो वर्टेक्स सेट डिवाइड करते वक्त हमें इसी तरीके से डिवाइड करना होता है. हम कैसे भी रैंडमली डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड. ठीक है, एक और एक एग्जांपल बताता हूं. सी, इफ आई टेक अ हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन. नाउ दिस इज A, B, C, D, E and F. Okay, and also I'll draw likewise. ठीक है, तो ये है हमारा ग्राफ. उसमें वर्टेक्स सेट क्या हो गया? A B C D E हो गया, F हो गया, A B C D E F. And I'll give the name to these edges also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9, 1, 2, 9 number of edges are there. Okay, 1, 2, I'll write it here 9. तो अभी Sir, देखो, you can give randomly names to any edges, no? हाँ, रैंडमली किसी को कुछ भी नेम दे दो, डजंट मैटर. नाम कैसे भी आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो. ऐसा कुछ उसके लिए कंडीशन नहीं कि इसको यही नाम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, नाउ सी हाउ विल यू डिफाइन द सेट V1 एंड V2. जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था, तो कोई भी एक वर्टेक्स ले लो. सपोज इफ आई टेक A इन द सेट V1, तो एक को जो भी एडजेसेंट वर्टिसेस है वो
V2 में आनी चाहिए। तो कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस है देखो, ए को P E F E C E E. B नहीं, एक मिनट I'll just check the graph once again। ये अंदर के एजेस में कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि फिर वो बायपार्टाइट नहीं होगा। ओके, कहाँ तक है एजेस? 6 तक है, ठीक है, 1 to 6। ओके, तो B and F are adjacent to A, ठीक है, B and F are adjacent to A। अभी देखो B and F को कौन कौन से वर्टेक्स एडजेसेंट है वो चेक करो, वो V1 में आएंगे। B and F को जो भी एडजेसेंट है वो, तो B को एडजेसेंट है C and A, तो A तो ऑलरेडी है V1 में, I'll write the C also। F को कौन सा एडजेसेंट है? A and E, so A is already there, I'll write the E also। okay, this is C। then अभी C and E को एडजेसेंट कौन कौन से देखो, सारे के सारे वर्टिसेस हो गए क्या? नहीं, और एक बचा है, तो C को एडजेसेंट कौन से है? B and D, तो B तो ऑलरेडी है V2 में, सो D इज देयर। हो गया A B C D E F, ठीक है, सारे के सारे वर्टेक्स हमने स्प्लिट कर दिए दो सेट में, कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये पहले कंडीशन से हमने, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, द वर्टेक्स सेट इज डिस्जॉइंट। अभी देखो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होते कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें V1 का सेट और V2 का सेट अलग अलग ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे वर्टेक्स A लिया हमने, ठीक है, C लिया हमने, एंड देन E लिया। V1 के वर्टेक्स हमने लिए यहाँ पे, और V2 के वर्टेक्स सेट यहाँ पे हमने लेते। B वर्टेक्स इज B F एंड देन D, या ऊपर नीचे आप कर सकते हो, यहाँ पे D ले सकते हो, यहाँ पे F लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो मैं यहाँ पे D एंड देन F लिखता हूं, ठीक है। अभी एजेस ड्रॉ करने हमें एक, तो एजेस, एज 1 इज बिटवीन वेयर A एंड B, तो A एंड B के बीच में एज 1 आएगी। देन 2 कहाँ पे? बिटवीन A एंड F, सो बिटवीन A एंड F। देखो एंड पॉइंट देखो एज का, that one end point is in vertex at V1 and the another end point is in vertex at V2, तो ये होगा एज 2। एज 3 कहाँ पे? देखो B एंड C के बीच में, ठीक है, that is the एज 3। 4 F and E, तो ये E है and this is F, see this is 4। 5 is between C and D, यहाँ पे आ गए। देखो इसका भी एक एंड पॉइंट वर्टेक्स एट V1 है और दूसरा एंड पॉइंट वर्टेक्स एट V2 में। 6 is between E and D, so E is here, D is here। देखो this is 6। हो गए सारे एजेस, और एवरी एज, कोई भी एज ले लो, उसका एक एंड पॉइंट वर्टेक्स एट V1 के वर्टेक्स को कनेक्टेड है, दूसरा एंड पॉइंट वर्टेक्स एट V2 के वर्टेक्स को कनेक्टेड है। सो दिस इज अ बायपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। ये क्या हुआ? बायपार्टाइट ग्राफ हो गया। ये मतलब कौन सा? ये वाला, ये ग्राफ और ये ग्राफ, दे आर नॉट डिफरेंट ग्राफ्स, दे आर द सेम। सो जस्ट टू चेक द whether it is a bipartite not or not, we have drawn this another form of the graph। मतलब यही ग्राफ हमने अलग तरीके से लिया, मतलब उसके वर्टाइसेस के पोजीशन चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों अलग नहीं है, दोनों ग्राफ सेम ही है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी सेम ही है, नंबर ऑफ एजेस भी सेम है, और जो वर्टाइसेस एडजेसेंट है वही वर्टाइसेस इसमें भी एडजेसेंट वही है, और एजेस जिसके बीच में है यहाँ पे भी वही एजेस उसी के बीच में। So actually these two graphs are not different, these are the same graphs। Okay, so this is a bipartite graph, is that clear?